Assalamu alaikum. My name is Ali Noman Gilani and I'm Chief Technology Officer at NIAIS, National Initiative for Artificial Intelligence and Security. Today, our esteemed guest is Dr. Asif Nawaz. Let me give you a brief introduction of him. So, Dr. Asif Nawaz received his MS Computer Engineering degree from Lahore University of Management Sciences, done his PhD in electromagnetic field and microwave technology from Beijing University of Post and Telecommunication, Beijing, China in 2010. He has also done an executive MBA from LUMS in 2012. So before joining HCT, Dr. Asif has worked around 18 years in industry with diversified experience, which includes but not limited to digital transformation, project management, planning, and operations management. He also served as senior manager wireless in Pakistan Telecommunication Company Limited. Despite his other technical professionals and business capability, Dr. Asif Nawaz has executed numerous ICT projects and proposals, including but not limited to Telenor CRM, Asia One, Internet of Things, network evolution of telecom operators, billing and customer care, and the list goes on. Being a PhD, he is fully inclined towards teaching and research as well. During most of his 18 years time in industry, he worked as adjunct faculty in different universities. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनोवेशन इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इसके अंदर जो है वो इस चीज पे फोकस किया जाएगा कि जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे का पूरा दैट इज वाइटल कोई भी सर्विस हो या कोई भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो वो सारी की सारी जो है वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रन करनी है अब टेलकोस के अंदर सैटेलाइट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और माइक्रोवेव वो डिफरेंट इस तरह के जो हैं वो जिसके अंदर एक्सेस नेटवर्क्स कोर नेटवर्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं तो यहाँ से इस प्रेजेंटेशन से पता चलेगा कि इट्स अ ड्राइविंग फोर्स अल्टीमेटली टेलको नेटवर्क्स को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज चाहिए एंड आई एम हैंडलिंग ओवर द सेशन टू यू Okay, Assalamualaikum. Thanks, Noman, for a nice introduction, although I don't deserve for this. Just to add, I have worked in Ericsson as well as consultant enterprise architect, and those projects which were to unify whole of Telenor into Asia, Telenor One Asia project. That was done in the Ericsson. As of now, I'm working in Higher College of Technology, uh, Dubai, and as a brand ambassador for Higher College of Technology as well uh, to have collaboration between industry and the academia. So today we are going to discuss innovations in electrical and communication engineering. Uh, I, I have something which is very clear to me, at least, that initially uh, engineering, IT, and business, those were considered to be silos. But while working in the industry and going to academia now, first I saw merging of engineering with business and then IT with them as well. So that's the reason as of now you don't see only chief technology officers or chief information officers, you see chief technology and information officers, CTIOs, and then CBIOs, and then CTBIOs or something. So business and IT and engineering, they are very much related to each other. And we'll discuss some of the new trends and innovations which we can have in electrical and communication engineering, number one. Number two, of course, there are some business aspects of this thing. We are doing the business stuff, and these are, merged with the IT fabric as well. So welcome on board. Uh, agenda. So agenda of the presentation is, I don't know, we have सर question and answers of this. एक्सक्यूज मी Yeah. सर बायलिंगुअल हो जाए हम जरा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा Okay. So agenda of the presentation is that we'll start with introduction first, और उसके बाद हम communication network architecture की बात करेंगे कि actually what's the architecture of communication network, electrical and communication engineering की बात करेंगे, what's the landscape for that. फिर हम देखेंगे कि innovations in electrical and telecom engineering क्या क्या है, हम smart grids को देखेंगे, हम 5G को देखेंगे, हम IoT को देखेंगे, हम robotic process estimate, automation and AI को देखेंगे. Basically AI can be treated as superset of RPA. Big data and cloud वो भी देखेंगे. Over the top जो services है उसको देख रहे हैं हम लोग. Optical switching and networking
आपका जो भी इंफॉर्मेशन है जब क्लाउड पे जानी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यू नीड अ मीडिया टू कनेक्ट योर एंड डिवाइसेस टू द क्लाउड। तो जाहिर है वो ऑप्टिकल फाइबर है, जब ऑप्टिकल फाइबर है तो उसकी स्विचिंग एंड नेटवर्किंग कैसे होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लेस नेटवर्क, ये एक बड़ी चीज है कि आपके मोबाइल एडॉट नेटवर्क्स हो गए, फ्लाइंग एडॉट नेटवर्क्स हो गए, आपके अनमैन अल्ट्रा अनमैन एरियल व्हीकल्स हो गई, सैटेलाइट्स हो गए, और जो भी आपके वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स है एक्सेस साइड पे, उसको हम देखेंगे। सिक्योरिटी या रेजिलियंस को हम टच करेंगे कि ये सारा कुछ जब आप क्लाउड पे डाल रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई टू यूएस, तो दरमियान में जो भी लिंक्स हैं उस पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी। फिर एक और चीज़ है जो कि बड़ी टेलकोज और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को कर रही हैं, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कि जब आपने एक चीज़ को, आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं टुवर्ड्स द न्यूअर स्टेप्स, तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। और टोगैफ को मैं टच करूंगा, द ओपन ग्रुप एक्सेस फोरम के, बेसिकली वो सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स को। सो थोड़ी मतलब मैक्रो लेवल, आई नॉट से इट इज अ हाई लेवल, आई से दैट इज अ मैक्रो लेवल प्रेजेंटेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे। और इन केस ऑफ any micro level information, definitely you're most welcome to us from. uh, no ये वो trends हैं which are forcing everyone to think about the future and to reach the future which this world is leading towards. आपको पता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टैक्सी कंपनीज हैं उनके पास टैक्सी नहीं है, अपनी टैक्सी नहीं है। उबर उबर की कोई टैक्सी नहीं है। Accommodation provider has no real estate, Airbnb. Most valuable retailers have no inventory. अलीबाबा सारे का सारा सॉफ्टवेयर पे, कोई चीज मैनेज नहीं कर रहा। सो ये क्लेवर, जिसे कहते हैं क्लेवर एंड इंटेलिजेंट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि आईटी और इंजीनियरिंग ने हम लोगों को दी। मीडिया ओनर क्रिएट्स नो कंटेंट, फेसबुक के पास कुछ अपना नहीं है, सारा कुछ आप लोग देते हैं। ग्रोइंग बैंक हैव नो एक्चुअल मनी, सोसाइटी वन, इसमें मैं उसकी ब्लॉकचेन और आपकी जो वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो इसमें आ जाती है। लार्जेस्ट मूवी हाउसेस, दे डोंट हैव सिनेमा, नेटफ्लिक्स में वीडियो ऑन डिमांड जो मर्जी करें। अब मैं एटलीस्ट मैं कम से कम बॉदर नहीं करता, एक डेटा का कनेक्शन है, गाड़ी में लगाता हूँ, जो देखना हो वो मैं देख भी लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ, एनी टाइम, वीडियो ऑन डिमांड। 20 साल पहले ये था कि दिस जस्ट, आई रिमेंबर व्हेन एज अ किड कि वो मोटी मोटी वो केसेट से पकड़ के और वीसीआर को थप्पड़ थप्पड़ मार के वो करते थे, और सिगरेट Right. रखी हुई होती थी, उसका हेड क्लीन करते थे और सारा कुछ। सीडी आ गई जी, सीडी के स्क्रैच है, सीडी पे बफ लगवा रहे, सारी चीज है ना। देखें, लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर वेंडर्स डोंट राइट द एप्स, एप्पल और गूगल अपना कुछ नहीं कर रहे, वो दूसरों को एपीआई देते हैं, भाईजान लिखें और काम करें। And largest phone companies own no telco infrastructure. This is the more dangerous for the infrastructure-based companies like BTC here in Pakistan. इतिसलात की आप बात करें, स्काइप हो गई, वी चैट हो गया, फेसबुक हो गया, जूम पे हम बात कर रहे हैं। सो दे डोंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर जस्ट अ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड दैट्स इट। एंड ये जो चीज है, लार्जेस्ट पावर कंपनीज इज नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वापडा, आप, जब मैं इंजीनियरिंग में था तो उस वक्त जनाब वापडा के पास एयर फ्लीट हुआ करता था कि जनाब चेयरमैन वापडा जहाँ भी तशरीफ ले जाते थे, वो एरोप्लेन होता था उनको। वापडा स्टिल रिचेस्ट, वापडा एंड रेलवे, दोज आर द रिचेस्ट एंड हैव हाईएस्ट कैपिटल इन कंट्री। जो ये दो कंपनीज, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। इमेजिन कि वापडा जनरेट ही नहीं कर रहा और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के बिजली जनरेट करके आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इलेक्ट्रिसिटी। तो वो स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह को, इसको हम बात करेंगे। एंड देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन, बट दिस इज समथिंग आई हैव, मेरी केमिकल प्लांट्स में आप बात कर लें, हेल्थ में बात कर लें, आप बैंकिंग में बात कर लें, और एक और चीज़ है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में बात कर लें कि वर्ल्ड का पूरा 2000 ईयर्स का डेटा आपने डाला है मशीन लर्निंग में, और आप देखते हैं जी 2 साल बाद दुनिया में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को आप कैसे चाहते हैं, यू कैन डू दिस थिंग। आप, Yes. दिस इज द डेटा, ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेटा एंड एक्सपीरियंस। एंड आई जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑन द ह्यूमन ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी जो है, जो जो आप लेते हैं from the childhood to he's young and then he's grown up and gets old, तो वो ट्रेनिंग होती है। और एक और मैं वीडियो देख रहा था, उसमें अमेरिकन जो उनके जो कमांडोज हैं, उनको दिस समथिंग कॉल्ड व्हिच इज ब्रेन फ्रीज। आपका ब्रेन उस चीज पे एक्ट नहीं कर सकता अगर आपके ब्रेन ने उस चीज पे पहले लर्निंग नहीं ली। सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू ट्रेन and then you get the answers.
सो आपके ब्रेन में भी अगर आपने कोई चीज आपको पता ही नहीं है तो आप उसका डिसाइड नहीं कर सकते. सेम इज केस फॉर कंप्यूटर्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. सो मशीन लर्निंग कंप्यूटर इज जस्ट लाइक मिमिकिंग योर ब्रेन इनटू मशीन्स. फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपका जो ब्रेन है इट इज ह्यूमन ब्रेन. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स ओवर देयर, बट देयर इज अ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. व्हाई डू यू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स? आप बहुत अच्छी राइटिंग है, आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन मैथ्स जो जॉब है एंड रिपीटेटिव जो जॉब है उसके लिए आप कंप्यूटर को लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा स्पीड से काम करता है. यू कैन नॉट बी एट दैट मच स्पीड. गाड़ी आप इसलिए रखते हैं कि गाड़ी 150 किलोमीटर पर आवर पे भागती है, आप नहीं भाग सकते. सेम इज द केस ऑफ मशीन लर्निंग. अब जो जिन चीजों पे हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज एक्सट्रैक्ट of humans capabilities, but they enhance the capability of human. एक और चीज आ रही है मैन मशीन इंटरफेस, कि ब्रेन के सिग्नल को उठा के डालेंगे जनाब किसी चिप में और वहां से प्रोसेसिंग करेंगे उसकी. एक और चीज होती है कॉपीइंग ब्रेन. आप वाईफाई तो खैर एक प्रोटोकॉल है जिस पर बात करते हैं. कॉपीइंग ब्रेन है कि आप ब्रेन से ब्रेन को टच करेंगे और आपकी सारी थॉट्स जो है ना किसी दूसरे के ब्रेन में आ जाएंगे. ये इस पे बात भी कर रहे हैं वो टेस्ला वाले और सीईओ टेस्ला और जो फेसबुक, ये सारे इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि ओके हम ब्रेन से डेटा किस तरह कॉपी करके किसी की दूसरे के ब्रेन में इंजेक्ट कर लें. सो दीज आर ऑल इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. नुमान साहब ये बताएं जरा ये क्या चीज़ है, और नियाज टीम टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस. आप बताएं ये क्या This is a giant network, huge network, web. नेटवर्क है. तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों हैं? सर इसमें सीमीवी केबल्स भी होंगी, वायरलेस लिंक भी होंगे, माइक्रोवेव लिंक्स भी होंगे, और डिफरेंट इनकी जो है वो बैंडविड्थ्स होंगी, और डिफरेंट जो हैं वो आई थिंक इनके जो फीचर्स हैं, इस वजह से इसको ज़रा डिस्टिंग्विश करने के लिए या एक आर्टिस्टिक लुक देने के लिए ये रेंडिशन जो है वो बनाई गई है. तो ये रियल नहीं है? वेल मुझे तो आपकी इस क्या तरह लगता जिस है आपको वर्ल्ड एज के एन अंदर इंजीनियर? पूरा का पूरा है. नहीं ऐसी चीज है, अगर ये चीज है दिस इज समथिंग रियल और नो. एक बंदे से मैंने पूछा, उसने कहा जी ये सर ब्रेन को ये इट लुक्स लाइक यस न्यूरॉन्स एज वेल. न्यूरॉन्स एज वेल सारा कुछ उसको ब्रेन को, एक बंदे ने कहा ब्रेन को मिमिक किया हुआ है, एक ने कहा स्ट्रीट लाइट्स हैं, किसी ने कहा क्या. देखते हैं क्या चीज है. मे बी आफ्टर द प्रेजेंटेशन यू बी एबल टू थिंक दैट व्हाट्स दैट. बट एक चीज है कि ये लाइट्स दीज आर रियल लाइट्स. ओके राइट. अब आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है. ओके सो कोई भी नेटवर्क हो, रिमेंबर उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं. एक होता है कोर और एक होता है एक्सेस या कस्टमर. ठीक है, तो जो भी कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर से कनेक्ट करेगा वो कोर के थ्रू करेगा. ओके नाउ कस्टमर से कोर तक पहुंचने में मेट्रो आ जाती है, मेट्रो नेटवर्क, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. you would have studied that you have LANs and MANs and WANs. so local area network ये है जनाब, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये है, वाइड एरिया नेटवर्क ये चीज है. फिर जाहिर है दूसरी साइड पे भी मेट्रोपॉलिटन होगा और फिर कस्टमर होगा. तो उसमें भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं कि अच्छा जी एक्सेस जब आपने करनी है एक्सेस साइड पे कस्टमर ने, तो या तो वायरलेस होगी या वायर लाइन होगी. और वायर लाइन में दो चीजें होंगी, या फाइबर होगा या कॉपर होगा. तो अगर वायरलेस है तो वायरलेस में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, 5G है, वाईमैक्स है, वाईफाई है. फाइबर में डेंस विड्थ रीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की है, जीपॉन है, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क. कॉपर में DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसमें आगे ADSL है, VDSL है, SDSL है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है. मेट्रो भी इसी तरह आपकी. अच्छा मेट्रो मीडियम हॉल कम्युनिकेशन है, आपके घर से लेके एक्सचेंज तक का फासला 4 to 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मे बी 20-30 किलोमीटर. तो उसमें आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जी. वायरलेस में आपके पास आ गया माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, और फाइबर में फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कैसे डेटा लेके जा रहे हैं, या तो आप सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की करेंगे, या गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क करेंगे, या IP और मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग करेंगे, या डेंस वेवलेंथ वीएन मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे. एग्जैक्टली. ओके अच्छा अब नुमान डेंस वेवलेंथ वीएन मल्टीप्लेक्सिंग में आपके डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, और लाइट के जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं. इसको जरा वो पिछली लाइट से कोरिलेट करना. अच्छा कोर में आपका फिर IP MPLS आ गया. आपने मुझे बताना है कि ये क्या चीज है एक्चुअली. और ओके कोर में फिर IP MPLS आ गया. MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग. क्या करते हो आप, पाकिस्तान की सारी ट्रैफिक जनाब जा रही है
लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, गुजरांवाला गुजरात, साहिवाल, ठट्ठा एटसेट्रा, सारे के सारे कराची जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान का एक इंटरनल नेटवर्क है, वैन जिसे हम कहेंगे। तो जब यस, आपने सारी ट्रैफिक पाकिस्तान की भेजनी ही कराची है, तो राउटिंग क्यों कर रहे हो भाई दरमियान के राउटर्स में? आप लेबल क्यों नहीं लगा देते? तो वीपीएन राइट, क्यों नहीं बना? ये एमपीएलएस बेसिकली इस चीज को कहते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो आप पैकेट को इंस्टेड ऑफ पैकेट का हेडर जो 64 बाइट्स का है, उसको पढ़ने की जगह आप ये लेबल लगाते हैं, छोटा सा 2 बाइट, मतलब 8-10 बाइट्स का होता है। एक दफा लेबल सेट हो गए, सॉफ्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, तो एमपीएलएस आपका स्पीडी कर देता है नेटवर्क, क्योंकि जी, आपके पास डिटर्मिनिस्टिक नोड्स होती हैं मेरी। अच्छा, जीएमपीएलएस इसने जो करना है, एमपीएलएस ने जो कुछ करना है वो पैकेट बेस करना है, पैकेट के साथ लेबल लगाना है। लेकिन अगर आप लैम्डा के साथ कोई लेबल लगाना चाहते हैं, जो कि डीडब्ल्यूडीएम को करेंगे, तो जनरलाइज एमपीएलएस आ जाएगा। फिर मैक इन मैक आ गया, एक 2.1 ए एच। ये और है कि मैक इन कैप्सुलेशन मैक में कर दें तो वीपीएन बन जाता है। पैकेट और सोनेट, ये एक चीज है कि आप सोनेट ऑप्टिकल पे ऊपर पैकेट डाल दें, कैसे होगा? ऑप्टिकल स्विचिंग, सारे पैकेट को स्विचिंग की थर्ड डोमेन में लेयर 3 पे आप, यहाँ पे जो हम स्विचिंग कर राउटर्स के दरमियान वो इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, नीचे मीडिया हमारा ऑप्टिकल है, तो हम स्विचिंग ऑप्टिकल क्यों नहीं कर सकते? अगेन देयर आर सम टेक्नोलॉजी लिमिटेशन थिंग्स। फिर नेटवर्क फंक्शन विजुअलाइजेशन हो गई कि एक्सचेंज, जिस तरह जूम पे आप बैठे हैं, जूम का स्विच जो है, जिसे हम पुरानी जबान में पीटीसीएल में कहते थे जी टेलीफोन एक्सचेंज, एक्सचेंज के साथ करो तो डेटा अच्छा आएगा। इसमें तो सर आप आपकी तो माशाल्लाह ओबीएस भी है, ऑप्टिकल बर्स्ट स्विचिंग के अंदर बर्ड आपका स्विचिंग। माशाल्लाह थीसिस भी है। और हम्म इसमें जब आप ई टू ओ या ओ टू ई कन्वर्जन करते हैं तो आई थिंक हम्म उसके अंदर जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। देयर आर हम्म, सम टेक्निक्स जो आपसे ही पढ़ी थी और उसको आगे एक्सप्लोर भी किया है कि प्रिज्म और कुछ मिरर्स के ज़रिए से जो है वो स्विचिंग मैकेनिज्म को इस तरह के जो है वो करते लाइट हैं, मेन के अंदर ही यानी लाइट कि में करते हैं। यस उसके अंदर ही करते हैं। तो वो जो प्रिज्म से जो ऑप्टिकल डिवाइसेस है ना, उसमें जो नुमान जो क्रिटिकल चीज है ना, कि पैकेट बेस्ड स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट में जो इलेक्ट्रिकल पैकेट होता है उसमें बाइट्स होती हैं हेडर की और बाइट्स होता है डेटा। तो आपके प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल डेटा को तो प्रोसेस कर लेते हैं, बफर्स भी हैं, बड़ी प्यारी लॉजिक भी है, एजिक्स हैं, और सारी एग्जैक्टली, चिप्स आपकी इलेक्ट्रिकल में। क्या आपके पास ऑप्टिकल डोमेन की चिप है? एज ऑफ नाउ नो। आप यस, ऑप्टिकल अभी नहीं। लॉजिक्स डेवलप हो जाए, ऑप्टिकल बफर है आपके पास, लाइट को आप बफर कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे? तो वो मैंने इसकी एक एफडीएल्स, टेक्निक मैंने इसकी एक टेक्निक एफडीएल्स पढ़ी थी कि लूप बैक करके लूप उसकी बैक बफरिंग करके, इसको होती है। एफडीएल कहते हैं, फाइबर जी, डिले लाइंस, ठीक है। जी, तो आप फाइबर डिले लाइंस कर लें, ठीक है। लेकिन फाइबर डिले लाइन, लाइट जा रही है 3 × 10⁸ मीटर्स जी, पर सेकंड की साइड चाह के आपने एग्जैक्ट 200 मिली सेकंड का डिले करना है, तो कितने किलोमीटर आपका फाइबर बन जाएगा? प्रोडक्टिव नहीं एग्जैक्टली, है, लॉस आ जाएगा। तो जिस चीज को आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ टू ई कन्वर्जन, उस डिले को, उससे ज्यादा डिले तो आपको इधर मिल रहा है। तो ये प्रोज एंड जी, कॉन्स है जिस पे आप बात करें। एक अदर चीज है जी कि जनाब, व्हाई नॉट टू मिमिक अ ब्रेन इनटू अ ब्रेन विद अ माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर की जगह ब्रेन को रखें और सारे के सारे सिग्नल्स उधर आ जाएंगे। यस, ब्रेन इज सो पावरफुल। हम 8 to 10% यूज करते हैं, और मेरे ख्याल में, मतलब चलें, वो रिकॉर्ड हो रही है तो कुछ लोग यूज ही जीरो यूज मीटर नहीं ब्रेन करते। होता है, बाकी मैं अच्छा, बाद में बाय द बताऊँ। वे सर ये 60,000 किलोमीटर की लाइन बनेगी, 20% हाँ अगर आप उसकी बात करें हाँ ना, 20 मिली सेकेंड, 200 मिली, समथिंग लाइक दिस, ना। यस, टू मच। सो लेकिन बात बात इस पे हो रही है। जब क्वांटम कंप्यूटिंग एक चीज है, क्यूबिट्स, तो जो वेवलेंथ होते हैं, जो एटॉमिक लेवल होते हैं, जब वो बेसिकली बिट्स एंड बाइट्स क्या है, 1 और 0 है। तो यस, आपने पढ़ा है कि एक जो एटम होता है जब आयोनाइज स्टेट में होगा तो 1 हो जाएगा, डाउन आएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जब आएगा तो बड़े सॉल्यूशंस, जो कि चीजें कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल थी, वो हो जाएंगी। और वो चीज़ है एट दैट हाई स्पीड, आपके होलोग्राम ट्रेवल करेंगे, मे भी बंदों को भी ट्रेवल करवा दे। एज ऑफ आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि मैस अगर ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स मूव, बट थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज सेट। कुरान पाक में तो बहुत पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, जी, जी, तो फिर कंट्रोल आ जाता है। ये सारी चीजें जब आपके पास होता है तो यू नीड अ गुड कंट्रोल फैब्रिक व्हिच इज द कंट्रोल। ईथरनेट की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं, एमपीएलएस की ऑपरेशन मेंटेनेंस करते हैं, इंटरनेट वर्किंग, क्लाउड पे, ग्रैंड नॉक, नॉक में मैंने काम किया था, उसकी जनाब वो रिजिलियंस और जो फेल ओवर थे बहुत अच्छे थे। अब वो जब मैं पाकिस्तान में होता था तो माशाल्लाह 2000 से 2500 तक बीटीएस मेरे पास होते थे। ओ जी, काना काछा में चक नंबर 332 में को बीटीएस की पावर फेलियर है, मुझे मैसेज आ जाता है। समटाइम्स गुड, बट समटाइम्स यू कैन गेट एवरीथिंग। हमारे प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त, उनकी स्क्रीन पे सारे के सारे खंबे आउट। तो
जो टावर्स आउट होते हैं, नोट आउट होती है, उसका अलार्म आ जाता था इस्लामाबाद में। अगर वो कहीं पे फॉर एग्जाम्पल ठट्ठा बदीन में किसी जगह पे कोई नोट डाउन है, तो जितनी देर में वहां पे मौजूद सर्विस इंजीनियर को पता चलता था, उससे पहले प्रेसिडेंट को पता होता था। यू कैन हैव वेरी गुड लुक ऑन हाउ योर नेटवर्क इज परफॉर्मिंग। अच्छा, वही चीज जो हमने की थी, कोर नेटवर्क में आपकी आईपी एमपीएलएस कोर आ जाती है, वीओआईपी वायरलेस एमजीएन पीएसटीएन कोर आ जाती है, आईपीटीवी कोर्स आ जाती है, मल्टीपल कोर्स हैं। वीओआईपी वॉइस की कोर हो गई, वायरलेस में आप वायरलेस बना देते हैं कोर में। एंड अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वायरलेस एंड मोबाइल, वी नो दिस। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स है, पीएसटीएन क्या है, आईपीटीवी क्या है, आईपीटीवी आपका ओटीटी में भी आ जाता है। एंड देन नेटवर्क्स हैं, एक्सेस में डीएसएल, डीएसएलएन, डब्ल्यूएलएल, ओएनवीएम, सैग, एफटीटीएच, एफसीसी, एवरीथिंग। यहाँ पे दुबई में 30 लाख वाले एफटीटीएच दे रहे हैं, घर तक फाइबर दे रहे हैं। सो आई हैव अ स्पीड ऑफ 100 मेगाबिट्स पर सेकंड ओवर एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो अगर कोई जिटर आता है तो आपकी साइड पे, मेरी साइड पे नहीं। ग्रैंड नॉक आई कैन शो यू। Right. मतलब Yes. मोबाइल वाईफाई पे मेरा आता है 50, 60, 80 Mbps, और जो मेरा 4G, अभी 4G यूज कर रहा हूँ मैं, 5G नहीं, तो मैंने 4G सर पे 20 मैंने Mbps। एफटीटीएच लगवा लिया, पीटीसीएल को काफी अर्सा हुआ मैंने छोड़ अच्छा दिया। अब माशाल्लाह, मैं घर भी तक जरा फाइबर आ रहा है। जी जी, मैं स्टॉर्म फाइबर का यूज करता हूँ, मैं भी अच्छा, पुरसुकून हूँ सर। अच्छा गुड हो गया, वो बहुत अच्छी चीज है। लैंडलाइन फिर क्लाउड में आप कर देते हैं कि जनाब, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपकी क्या चीज है जनाब, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या चीज है, एप्लीकेशन एज अ सर्विस क्या चीज है, और I बहुत think कुछ। cloud computing has a big potential in Pakistan and all across the world. As far as the job perspective is concerned, and as far as अगर एक data center यहाँ पे लगता है तो 5,000 plus jobs जो हैं वो create हो सकती है। तो I think economy के लिए भी ये services बहुत बिल्कुल। important आपको पता है जब मैं मिनिस्ट्री में वो एज मेंबर सिलेक्ट हुआ था, तो उस वक्त इंटरव्यू में मैंने यही बात की थी कि आपके जो जो भी, और हमारा ये जो इनिशिएटिव था पाकिस्तान का डिजिटल क्लाउड, आप डिजिटल पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्चुअली मिनिस्ट्री में शायद एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको जी क्लाउड कह रहे हैं, जी क्लाउड, गवर्नमेंट क्लाउड। तो उस क्लाउड में वो डेटा सेंटर होगा सारे का सारा, उस पे सारा डेटा आपका गवर्नमेंट का पहले आएगा, फिर पब्लिक, और उसको आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वो सारे डेटा से जो ई फाइलिंग सिस्टम है सारा कुछ है, टेक्नोलॉजिकली सोल्यूशन इज अवेलेबल नाउ, हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ वी हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। Change management, the people are not, afraid that they'll be losing their job. That's something important, because तो मैंने सुना था पावडा में एक हड़ताल हो गई कि वो सीईओ को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। Again, this is something, this is not related to technology, this is related to the fear the people have that we'll be losing our jobs. No, you will not be losing your jobs, you will be transforming into yes a new personality, a new skill. मतलब मैं जब छोटा होता था, लिटरली मैं आपको वो दिखाऊंगा, जब मैं छोटा होता था, आई कुड नॉट हैव एवर थॉट ऑफ कि हमारे अताउल्लाह साहब कभी 2 पीस टाई लगा के गाना गाएंगे। अताउल्लाह खान is, yeah, and जी he is जी in Coke Studio, yes or still he's there, so he transformed himself, okay, yes and उसके उनके बच्चे को देखें तो वो बिल्कुल ही आ गए। तो you need to transform. uh, if you don't transform, you can just stop the change, but if you don't transform into yourself into new skills, जो पुश जो है ना जमाने की, वो आपको उड़ा के रख देगी। पीटीसीएल को देखें 20 साल पहले क्या थी, अब क्या है। सेम विल हैपन विद वापटा, सेम विल हैपन विद ऑल द इंस्टीट्यूशंस इफ यू डोंट ट्रांसफॉर्म, ओके। सो द पीपल शुड बी ट्रांसफॉर्म, एंड दीज आर इजी थिंग्स। मतलब जो अलजबरा है ना, जो 8वीं क्लास में जो बच्चे अलजबरा पढ़ते हैं, ये आजकल के दौर में क्लाउड पे सैस पैस ये चीजें आसान है, ठीक है ना। जी मेरे बच्चे कहते हैं जी बाबा जोग्राफिया का क्या मतलब है, और जब मैं कहता हूँ कि जनाब एक दिन फ्यूचर फॉर साइट की एक ट्रेनिंग थी, तो उसमें मैंने बच्चे से पूछा, कहता बाबा अवतार बनाएं, आपके एक होलोग्राम से टीचर करें आप, मतलब जोग्राफिया का नहीं पता उसको, लेकिन वो होलोग्राम्स की बात कर रहा मॉडर्न बिल्कुल। है, ठीक है ना। तो ये उसमें आजकल की जनरेशन को हम डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं कि डिजिटल नेटिव्स ये क्या एग्जैक्टली वो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे जी और वो जी। बहुत जल्दी ग्रैस्प कर रहे हैं, उनकी जरूरत अच्छा है, तो अच्छा, वो उसको नेगेटिव साइड पे ले जाए। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव वो होता है। अब बच्चे जो हैं उनको पढ़ाई में वो सी ग्रेड लेंगे, डी ग्रेड लेंगे, लेकिन वो इंस्टा फेसबुक ऐसी ऐसी, मतलब जरूर थिंग्स आर मूविंग, थिंग्स आर चेंजिंग, इमेजिन। तो वो चीजें जो है ना चेंज हो रही हैं, तो इसमें यूथ के लिए बड़ा पोटेंशियल है। इसमें एक और चीज मैं बताऊं आपको जो आ रही है, और वो आ जाएगी, मतलब बाहर की दुनिया में तो आ गई है, वो है डिग्री लेस एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। जी तो पहले जो आप एमए इस्लामियात, एमए इंग्लिश, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग ये वो करते हैं, नहीं जी, वो कहते हैं, मतलब जब हमने इंजीनियरिंग की तो हमारे पीटीसीएल ने, अल्लाह भला करे उनका, एंड इट वाज गुड फॉर अस,
कि उन्होंने हमारी 7 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी सारे सिस्टम से हैंड्स ऑन, बिकॉज वो सिस्टम्स हमारे पास यूटी में नहीं थे। लॉन्च वाले ज्यादा हैंड्स ऑन थे, तो उन्होंने जनाब जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे करवाते थे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सिमुलेशन थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली आपको हैंड्स ऑन काम करना पड़ता है। तो डिग्री बेस्ड एजुकेशन से वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी सेट। आईबीएम कहती है मुझे इंजीनियर नहीं चाहिए, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का पाइथन का बंदा चाहिए, चाहे 8 जमात पास है लेकिन उसको पाइथन अच्छी आती है तो ठीक है। ठीक है, एरिक्सन कहते हैं मुझे एज्योर का बंदा चाहिए, मैं इसी से कंसर्न ही नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग की हुई है, मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी। ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो सर बॉर्डरलेस एजुकेशन। NIAIS में हम यही जो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं, स्किल बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, उसी को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये मेरा एक जाबिर है, जाबिर। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो सॉरी। हाँ, या प्लीज कंटिन्यू। अली, आप क्या कह रहे थे? तो जी मैं कह रहा था कि NIAIS के अंदर हम यही जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्री 4.0 और आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में हम स्किल बेस्ड सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो ये इस वक्त नीड ऑफ द आर भी है, और अगर हमने इसको ना किया तो हमें प्रॉब्लम ये होगा कि हमें बाहर से सॉल्यूशंस मंगवाने पड़ेंगे बहुत एक्सपेंसिव, हमारी जॉब मार्केट भी जो है डिप्लीट हो जाएगी, और ज़र मुबादला भी जो है हमें एक्सपोर्ट के ऊपर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। और एक बात आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल यूरोप में, अमेरिका में आपने जो और आईटी का यही फायदा जो नुकसान है, फायदा मैं कहूँगा वर्चुअलाइजेशन। पाकिस्तान में सब स्किल्स बहुत ज्यादा हैं और कैपिटल सस्ता है। इंडिया में भी ऐसा ही है, चाइना में भी ऐसा ही है। तो मतलब यहाँ दुबई में जितने भी कॉल सेंटर हैं, किसी बैंक के कॉल सेंटर पे आप बात करें, किसी स्टोर के कॉल सेंटर पे बात करें, द कॉल लैंड्स टू इंडिया और पाकिस्तान, अपने ही बच्चे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो स्किल बेस्ड हैं, तो सारी की सारी जो चीजें अभी भी हो रही हैं एटलीस्ट कस्टमर फोकस्ड, वो उधर हो रही हैं। क्या चीज प्रोप्राइटरी है? एप्पल, एप्पल के पास क्या चीज है? एप्पल का फोन चाइना में बनता है, एलसीडी चाइना में बनती है, चिप्स वो इंटेल से किसी और से बनवा लेते हैं, वो बायोनिक चिप्स है। एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी गुड, एंड सॉफ्टवेयर यू कैन डेवलप। मे बी उन्होंने सॉफ्टवेयर के अपने कुछ पैकेजेस पाकिस्तान में आउटसोर्स किए हों। तो ये जो चीज है ना कि आपकी स्किल बेस्ड, आपने एक स्किल पैक को पकड़े, उसमें मास्टर हो जाए और फिर आगे दें। तो जो फ्यूचर है, जो कि फ्यूचर फोरसाइट की मैं वो नॉमिनेट हुआ था, उसमें मैंने इन्फ्लुएंसर तक की कर ली है। तो फ्यूचर इज बॉर्डरलेस एजुकेशन नंबर 1, कैंपस लेस एजुकेशन नंबर 2, डिग्री लेस एजुकेशन नंबर 3। सो डिग्री लेस की जगह होगा स्किल बेस्ड एजुकेशन। और आगे एक मैं कहता था, बड़ा वो हंसते थे, मैंने कहा बैंकलेस बैंक, कि आप पैसा बैंक में नहीं रख रहे लेकिन आप बैंकिंग कर रहे हैं, ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये जी सारी चीजें इनेबलर्स जो हैं, वी हैव दिस इनेबलर्स। देन अगेन लैंडस्केप में वही जो बात हम कर रहे थे कि जनाब हम नेटवर्क में देखें तो कन्वर्जेंस है, मोबाइल इंटरनेट है, फेमटोसेल्स है, डिजिटल कस्टमर पे गेमिंग, इंटरटेनमेंट, फाइनेंस, एवरीथिंग आ जाती है। इनोवेशन में कोलैबोरेट करें, और बड़ी बहुत ज्यादा चीजें। मीडिया में आप क्या क्या डालते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी कैसे जाती है, स्मार्ट डिवाइसेस आपकी उठ के आ रही हैं कि फोन सेट हर बंदे के पास है, पेनिट्रेशन देखे, बिजनेस देखे। आप एरिक्सन में मैं था तो एरिक्सन का फोन मैंने देखा था, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा फोन था, बहुत महंगा था उस 2001 में 80-90 हज़ार लाख का मिलता था पाकिस्तान में। जी 2G फोन था, बड़े प्यारे से एंटीनास और कवर्स और वो सारा कुछ था एरिक्सन ने। और मैं ये कहता हूँ आज मेरे जॉब में मेरे जाके, पास भी था। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जब नया आया था तो इस्लामाबाद में मैंने लिया था नंबर, तो मेरे पास भी था। तो वो अब आई से कि ये उनकी मिस्टेक थी टू गेटिंग आउट ऑफ मोबाइल बिजनेस। तो सोनी एरिक्सन को दे दिया, सोनी एरिक्सन के सेट को देखता ही नहीं। और ओप्पो ओप्पो क्यू मोबाइल और पता नहीं कौन कौन सी आई पड़ी। एप्पल और सैमसंग तो लीडर है, हुआवे भी आ गया, लेकिन बाकी जो है प्लेयर्स तो वो बहुत अच्छा उनके पास एक थी, तो लेकिन आई डोंट नो, पीपल डोंट सी द फ्यूचर। इफ यू सी द फ्यूचर 20 or 30 years ahead of you, you will know where we are standing. We will know where you are standing. मेरी सास है माशाल्लाह, और वालदा है मेरी, फेसबुक पे बात करती है, कहता पुत्र व्हाट्सएप तो यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे और ये चीजें। अब इमेजिन करें जब हम बच्चे थे तो क्या करते थे। ठीक है, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड्स एंड वीवीपीज, ये बड़ा एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। एनर्जी इज अ क्राइसिस, और हम लोग अगेन ये समझते थे। फिलहाल से मुझे एक फैकल्टी ने कहा था कि जनाब अगर कोई पीएचडी है
अगर वो कोई PhD है हमारा पावर में, तो विदाउट इंटरव्यू हम उसको सिलेक्ट करेंगे, विदाउट इंटरव्यू। मैं क्या, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं थी वो नहीं, पावर। सो पावर में जो स्मार्ट एनर्जी इज अ क्राइसिस गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। 5G आपके एक्सेस में हो गया, IoT मैंने बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, रोबोटिक प्रोसेस, ऑटोमेशन, AI। ये मुझे नोटिस दे रहा है कि मीटिंग टाइम इज 3 minutes and 55 seconds at सर a ये certain point. नहीं नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू रखिए, आपको सेकंड लिंक विद इन मिनट मिल जाएगा, उससे हम कंटिन्यू कर ठीक है, लेंगे। अच्छा ठीक है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एनीवेज, सो देन ऑप्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस की बात करते हैं। स्मार्ट ग्रिड्स और VPP में क्या है जनाब, कि आप एज अ कंज्यूमर, सोलर पैनल आपने छत पे लगाया होगा, आप बिजली बनाएंगे, जितनी चाहिए आपको यूज करेंगे, बाकी आप ग्रिड में दे बेचेंगे वो आपको, ठीक है। तो multiple millions of people will be sending and transfer receiving energy to the smart grid। जाहिर है, जब एनर्जी आ गई, एनर्जी की अकाउंटिंग करनी है, कितने यूनिट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, बिलिंग करनी है, किस पे करेंगे, क्लाउड पे करेंगे, एक्सेस नेटवर्क पे करेंगे। कंज्यूमर पावर जनरेशन, कंज्यूमर बनाएंगे, राउटिंग पावर होगी जनाब। ये बड़ा एक मेरा प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पे दीवा में, उसमें काम कर रहा हूँ। मशीन लर्निंग यूज करेंगे प्रोडिक्शन के लिए, कि अच्छा जनाब इस इलाके में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, तो 6 माह बाद यहाँ पे उस पर्टिकुलर डे में 4 बजे हमारे पास कितनी पावर मौजूद होगी, और उसको हम उस वक्त सखर में कैसे यूज कर सकते हैं, या मरी में कैसे यूज कर सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, दीज आर ह्यूज। ओके, वायरलेस पावर ट्रांसफर आप करेंगे जनाब, यू कैन ट्रांसमिट पावर वायरलेसली। लेजर इज वन थिंग, माइक्रोवेव इज अनदर थिंग, वायरलेस मैग्नेटिक फील्ड थर्ड थिंग, एंड देयर आर वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन। स्मार्ट रिले और कंट्रोल नेटवर्क चाहिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी कुछ अर्से बाद तेल ने बिल्कुल ही खत्म हो जाना है, तो सनलाइट है, टाइड्स हैं, ये वो सारा पीजो एटसेट्रा, जियोथर्मल, जियोथर्मल, जियोथर्मल एंड मेनी अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, नाउ बच्चे पार्क में कूदते हैं, वहां पे आप पीजोस लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। रोड्स पे आपकी हर वक्त मूवमेंट होती है, प्रेशर रोड पे डेवलप होता है, पीजो लगा दें, रोड की सारा लाइट सारी वहां से आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट्स आर देयर, चीप सॉल्यूशंस, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, दैट्स द प्रॉब्लम। चीप सॉल्यूशन इज अबाउट, एंड पाकिस्तान, दिस एरिया, सब कॉन्टिनेंट एंड चाइना एटसेट्रा, यहाँ पे लेबर आपकी सस्ती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क फैब्रिक चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। और लेकिन लाइनमैन को चेंज होना पड़ेगा। और मैं जब ज्वाइन किया था PTCL में, तो लिटरली मैं उस ऑल वक्त इन ऑल AD था, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। अफसर बने थे जी ग्रेड 17 के, तो आ गए PTCL में। तो वहाँ पे हमारा FSTC एक चीज होती थी, फ्री सर्विस टेलीफोन कनेक्शन, वो लगाने के लाइनमैन आए। तो आते ही उसने कहा, भाईजान चाय किधर है? सर तशरीफ रखे, 3 दिन से उसने तंग किया था। कहता आप किधर हो? मैं कहा मैं PTCL में होता हूँ, ये मेरा फ्री सर्विस है, मैं बड़ा अफसर हूँ। कहता सर अफसरों की क्या जरूरत है PTCL में, काम तो सारा हम करते हैं। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि माइंडसेट, वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। ओके, तो वो आपने आपकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मे बी द चेयरमैन PTCL एक ऐसा डिसीजन करेंगे जिससे लाखों लोगों की जॉब बचेगी और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना पाकिस्तान में आएंगे। सो वो जो उनका विजन है, वो जो उनकी स्किल है, दैट विल हेल्प। सो अगेन, तो एक सेइंग है जिसे कहते हैं कि आई सी व्हाट द माइंड नोज। आई लाइक दिस सेंटेंस, कि दिमाग, आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो दिमाग को पता है। अगर आपको पता ही नहीं है किसी चीज का, तो आप उसको देख नहीं सकते। एनीवेज, जी सर, सो आंख कस्टमर ओझल इज पहाड़ ओझल, जी बिल्कुल, या आंख ओझल पहाड़ ओझल कह सकते हैं उसकी वही तरह का, लेकिन ये ऑक्सीपिटल आउट ऑफ लोग साइट आउट ऑफ माइंड। बेसिकली, या यस यस यस, ऐसे ऐसे ही मैं एक चीज कहूंगा, अगर मुझे उसको पता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज है, अगर एक बंदे को पता ही नहीं है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज क्या चीज होती है, वो इग्नोर कर जाएगा। एग्जैक्टली, तो अच्छा, एंड सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्स इन। ओके, सो एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि आपकी सेंट्रलाइज्ड है, उसने ये काम करना है, ठीक है, जो इस चीज को मैनेज करेगा कि कोई किसी दूसरे का ईट अप ना करे। जब बिटकॉइन आ जाएगा, जब ये वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, मेरे मोबाइल फोन से मैं सारी पेमेंट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट खोला, उसने कहा सर व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा जनाब, द डे वन यू आर कॉलिंग मी and when I'm going to finish my relationship with you, then I'll be visiting your office, that's it. I don't want to go to bank, that's it. I don't have time for this, ठीक है ना। राइट, तो इस तरह की चीजें जो है, फिर वो रेगुलेटर का काम है कि उस चीज को कैसे मैनेज करें। आप ट्रस्ट करें, आपको पता ही नहीं है अली बाबा का ऑफिस किधर है, आपको पता नहीं है अमेजोन किधर बैठा है, लेकिन यू आर ट्रस्टिंग बिकॉज देयर आर रेगुलेशंस। एनीवेज,
5G क्या चीज है जी? एक्सेस का मैंने बताया, ये अल्ट्रा हाई स्पीड है, माइमो को यूज करती है। अगेन दिस इज टेक्निकल टर्म, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल एंटीने इकट्ठे करके सिग्नल्स को कर लेते हैं। अल्ट्रा स्पेस लो डाइवर्सिटी। लेटेंसी, स्पेस डाइवर्सिटी भी करते हैं, पर इसमें दूसरी भी टाइम एंड फ्रीक्वेंसी की डाइवर्सिटी भी होती है। अच्छा, राइट। नेटवर्क स्लाइसिंग कर लेते हैं। फिजिकल लेयर पे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं आप। वैसे तो विजुअलाइजेशन आप ऐप पे करते हैं ना, एप्लीकेशन लेयर पे, फिजिकल लेयर पे कर दी, फास्ट हो गया। टेल्को रोल जो है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर टू सर्विस प्रोवाइडर, अब अफसर नहीं है, अब आप जो है ना, जिसे कहते हैं ना सर्वेंट लीडरशिप। सो एग्जैक्टली। वो एक बैंक में मैं गया, एक बैंक, हाँ बैंक में गया था, तो एक बंदा टाई लगा के ना हर कस्टमर के पास जा रहा है। पता नहीं शायद इधर दुबई में था या जर्मनी में था, याद नहीं है, पाकिस्तान में नहीं था उस वक्त। तो वो बेचारा हर किसी से कह रहा, बड़ा सूटेड वूटेड बंदा, और वो मैं कहा ये कोई बंदा नहीं, कोई सबका नौकर ही है। तो कहता है आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक। तो मैंने कहा भाईजान कुर्सी की तरह है? कहता है ये मेरा ऑफिस है, मैं सारा करता हूँ। सो दिस इज समथिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पीएमपी में भी आप देखते हैं, दिस इज कॉल्ड जी सर्वेंट लीडरशिप। सो सर, लीडर इज खादमे आला, बेसिकली खादमे आला। लीडर इज योर सर्वेंट। सो सर्वेंट लीडरशिप होती भी यही बात है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस आप कैसे करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर कैसे करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर कैसे करते हैं, और फिर इंगेजमेंट आप कैसे करते हैं गवर्नमेंट इंटरप्राइज कस्टमर से, ये सारी चीजें फिर आप देखते हैं क्या। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अच्छा, ये एक बड़ी मजे की चीज है, ये भी वैसे बज़वर्ड ही है, सारा कुछ जो है ना बस, और जिसे कहते हैं अच्छा, स्मार्ट एक्स, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट पावर, ट्रैवल, एग्रीकल्चर में बड़ा इनोवेशन है। हम लोग एग्जैक्टली। क्लास 5 से 8 तक मैंने एग्रीकल्चर पढ़ी थी ना, तो मुझे तो अभी तक उस वक्त तक ये नहीं पता था कि आम का दरख्त होता है या पौधा होता है, या आम और नीम के पत्तों में क्या फर्क है। और कुछ लोग बड़े अच्छे थे उसमें, जो दोस्त मेरे थे विलेज बैकग्राउंड से थे, वो सारे कहते हैं ये सरसों का। मैं क्या ये पता कैसे चलता है यार, सारी एक चीज है, ये निम है, ये चीज है, एटसेट्रा। एग्रीकल्चर में इस वक्त ह्यूज इनोवेशन इज एक्सपेक्टेड। आपके जितने भी एग्जैक्टली। सेंसर नेटवर्क्स हैं, और आपके जिनसे सेंसर नेटवर्क, ड्रोन्स एटसेट्रा, एग्रीकल्चर इज ह्यूज पोटेंशियल इन पाकिस्तान। मैं पीपीआईबी में जॉब करता था, तो उस वक्त जनाब वाला ऐसे देखते थे, दूसरे प्रोजेक्ट्स का बजट होता था 2 बिलियन 3 बिलियन, कैनाल की, नहरों का जो जिसे भल सफाई कहते थे, और वो जो उर्दू में कहते हैं पुश्ते लगाना, या जिसे कहते हैं ट्रैम्परिंग ऑफ एजेस ऑफ द कैनाल, समथिंग लाइक दिस, 500 अरब 800 अरब 2000 की बात है बजट होता था। आपको पता है मंगला और तरबेला ये किसको ओन करते हैं? वाब में ये वापडा ओन नहीं करता, इरिगेशन डिपार्टमेंट ओन करता है। तो मंगला एंड तरबेला's प्राइमरी पर्पस इज द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट इज इरिगेशन, इट्स नॉट पावर। सो ह्यूज पोटेंशियल। यस और एग्जैक्टली। इंशाल्लाह यू विल सी sometime I'm back with a farmhouse and doing some agriculture project. अच्छा, स्मार्ट पीपल बैंड बॉडी सर, आई एरिया विल बी द नेटवर्क, पार्ट ऑफ या इंशाल्लाह ये तो मैंने करना ही करना है, क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे बंदे हैं ही नहीं, इंजीनियर। इमेजिन कभी आपने सुना था कि इंजीनियर जो है किसी खेत में जाएगा और वहाँ पौधों पे रिसर्च कर रहा होगा। इट। एक एग्जैक्टली। फैसलाबाद में जैसी यूनिवर्सिटी है, बारानी यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आप हम जी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वी आर सुपीरियर एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स अ बिग 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 सेटअप। और आपको पता है कि यहाँ पे या चाइना पे जो केला है, वो कम छोटे से छोटा केले का साइज 10 से 12 इंच, मतलब दे आर टू बिग। जी जी एग्जैक्टली शिमला मिर्च एग्जैक्टली। बड़ी कर दी, सारा कुछ है, मैंगोज बड़े, एप्पल ह्यूज। सर, सो अभी तो इस इनोवेशन बहुत ज्यादा आ गई है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बच्चों से प्रोजेक्ट भी करवाए। वो एक तो इरिगेशन सिस्टम था, ऑटोमेटिक जीएसएम कंट्रोल, और हाँ एक उसके अंदर जो था वो ग्रीन हाउस पूरा डेवलप करके उसकी हाँ, ड्रिप इरिगेशन और सारा कुछ कंट्रोल करना, टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में। गुड हो तो गया। इसके अलावा भी और बेशुमार इनोवेशन जो है वो आ रही हैं। इनोवेशन चाइना है के मल्टी, अंदर जो है वो मल्टी मल्टी लेवल फार्मिंग हाउसेस, हाँ मतलब मल्टी वो स्टोरी इस तरफ भी जा फार्मिंग। रहे हैं। अच्छा, मल्टी फिर स्टोरी। आपका वाटर, इस एक पूरी पूरी एक पूरा एक फील्ड है ये, ठीक है। एग्जैक्टली। आई हैव 11 मोर मिनट्स। सो पूरा एक ये फील्ड है जिसमें आपका मल्टी स्टोरी हो गया, उसकी क्रॉप के डैमेजेस कैसे होंगे, और ये वो जो बंदा जो है वो खाद को लेके हाथ से फेंकता फिर रहा होता है, यू नीड टू कंटेन दिस थिंग बिकॉज दिस इज लॉस। और कंट्री वाइड देखें तो बहुत ज्यादा लॉस। स्मार्ट बिजनेसेस आ गए, स्मार्ट ट्रेड आ गया, मच मोर, दिस टू मच। ओके, Internet of Things, again, anything connected to internet is Internet of Things. You share data, you do something, that is Internet of Things. इसमें एक एग्जांपल थी कि आप जनाब एक दिन आप कहीं जाना है आपने, तो योर मीटिंग इज पुश बैक फॉर 45 मिनट्स,
तो पुश बैक फॉर 45 मिनट्स एंड देन योर कार नोज कि आपकी मीने है तो देर से स्टार्ट होगी, अलार्म क्लॉक में जाएगा, अलार्म क्लॉक खुद ही चेंज हो जाएगा। एक्सीडेंट रोड पे है तो डिले आ गया, तो डिले की वजह से आप अपना वो जरा जल्दी तैयार हो जाएंगे। ट्रेन इज रनिंग 20 मिनट्स बिहाइंड स्केड्यूल, तो आप 20 मिनट और सो लेंगे। एंड सिग्नल टू कॉफी मेकर कि जनाब आप 5 मिनट बाद चलें, और and signal 5 minutes to melt the ice or something like that. So everything connected. But there's a logic because you are giving all of your privacy and all of your information to the other people. RPA, robotic process automation and AI, आपके VAs हो जाएंगे, avatars हो जाएंगे, आप ही के images हैं, 3D images दूसरी जगह पे आ रहे हैं, कर रहे हैं, ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, स्ट्रीमिंग, सारा कुछ है। मतलब कल को आप अगेन बिजनेस में जो टीचर है जी, आप मैं एक डिवाइस बनाऊं होलोग्राम, उसको प्रोग्राम कर लूं और मंथली बेसिस में उसने अपने लेक्चर फीड कर, दैट्स इट। सो अब आप होलोग्राम पे बैठे, टीचर आपके घर में आपको पढ़ा रहा है, आप उसे देख रहे हैं, वो आपसे इंटरेक्ट भी कर रहा है समटाइम्स इफ आई एम हियर एंड मेरा एवटार उधर है। तो एजुकेशन में बड़ी इसकी है। अच्छा, ये CNN चैटबॉट्स ने लाइव डेमो भी करके दिखाया था इसका। किसने? होलो CNN ने लाइव हाँ, वो जो होलोग्राफिक इमेज 3D पूरे पर्सन का, वो कहीं और था, उसको एंकर के सामने जो है वो लाके खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह इधर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पिछले साल 2 साल पहले शायद हमारे CEO और उनका एवटार दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। So राइट। see, वो that is good. And again, this is a cultural because we want to share knowledge and we want to tell people across the world that where we are heading to. अच्छा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आ जाएगी। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का क्या इशू है? क्रेडिट कार्ड आपका कोई दूसरा ना यूज कर ले, खाली ना हो जाए। एनालिटिक्स है, डिसीजन मेकिंग है, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है। फिर बिग डेटा और क्लाउड में जैसा मैंने बताया कि सारा कुछ आपने इस पे रखना है, तो या तो आप पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म दे देंगे, हार्डवेयर डाल दें, आप अपना सॉफ्टवेयर जो करना है, या सॉफ्टवेयर दे दें या एप्लीकेशन दे दें, जिस तरह जूम एप्लीकेशन है सर्विस हम यूज करें। किसी ने एक कंपनी खोलनी है, नो ही डजंट नीड टू सेट एन ऑफिस, जस्ट एक ईमेल बॉक्स ले, एक वेबसाइट ले, एक सारा कुछ ले, वर्चुअलाइज बैठ के घर से बैठ के चलाए। बट इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल बाय द वे। OTT, ओवर द टॉप IPTV आपका आ गया, स्ट्रीमिंग मीडिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन मूवी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ब्लॉकचेन एटसेट्रा, सारा कुछ किस पे जाएगा? आपका नेटवर्क होगा तो जाएंगे। नेटवर्क को क्या चीजें चाहिए? नेटवर्क को कम्युनिकेशन चाहिए, नेटवर्क को पावर चाहिए, नेटवर्क को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन भी है, पावर भी है, IT भी है। क्यों आप कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें कोरिलेट होगी ना, बिग पिक्चर में देखें अगर आप। क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टिक्स इन प्रोसेस एंड स्विचिंग है, वो उसमें आप चाह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, प्योर ऑप्टिकल स्विचिंग है, प्योर ऑप्टिकल बस स्विचिंग है, पॉन एटसेट्रा, इसमें ये फिर सारे बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग और DNA कंप्यूटिंग भी ऐड कर हाँ लें। वो आ रही है। बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग, DNA कंप्यूटिंग भी आ गई, वो बेसिक बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग आ गई। लेकिन प्रोसेसिंग, स्विचिंग एंड नेटवर्किंग में आपकी ये इस वक्त इन वोग ये चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल, लैम्डाज आपके जा रहे हैं, तो ये देखा यार, ग्रीन, रेड, येलो लाइट। और पहली डायग्राम कुछ याद आ जी रहा है क्या है? एग्जैक्टली। अच्छा, एंड पे बताना है, आपने सर मुझे बताया क्या है सर ना। मैं अभी डिस्कस कर लें इसको थोड़ा सा। नहीं नहीं, एंड पे करते मैं हैं, वी हैव चलें 7 चलें, मिनट्स। ठीक ओके है। ठीक है, ओके। श्योर। वायरलेस मैश इंफ्रास्ट्रक्चर लेस में जनाब सैटेलाइट्स आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपके रोबोट्स आपस में बातें करें वायरलेस मैश, तो वो आपके वायरलेस मैश नेटवर्क्स हैं, मैनट्स हैं, बॉडी एरिया नेटवर्क्स हैं, शिप्स हैं, सैटेलाइट, लियो, जियो, मियो, UAV, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म, वो जो बैलून्स होते थे कि जनाब एग्जैक्टली। आपका कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, सिग्नल, लोग बहुत ज्यादा आ गए, 20,000 30,000 पीपल आ गए, जो BTS तो वहाँ का आपको ऑफर नहीं करता। पहले जी BTS ट्रक पे ले आए, ड्रोन्स भेजें, ड्रोन्स को रिले करवाएं ट्रैफिक थ्रू BTS में कुछ और एंटीने लगाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सब, दैट्स इट। सो सिग्नल लॉस है, चोकिंग होती है, तो सर व्हीकल्स में आता है, मोबाइल रोबोट्स हैं, फिर साइब, हाँ ये जो चीज़ है इसमें इसने कहा था जी सारा कुछ आप कर रहे हैं, सारा कुछ तो आप अपने एग्जैक्टली। पकड़ के रख रहे हैं बाहर, तो सिक्योरिटी का क्या है? तो अगेन रेगुलेशन हैज टू कम। डॉस एंड DDoS अटैक होते हैं, मेलवेयर्स होते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन होती है, IDS होता है, SDN, NFVs हैं, सॉफ्ट स्विचेस हैं, टू मच। ओके ना इंडस्ट्री, ये जो बात है, जो नया टॉपिक मैं कर रहा हूँ, इसको मैं जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगा। हम लोग रिमेंबर जी, ये बड़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ दैट दिस इज अ गुड टेक्नोलॉजी। नो, अनलेस लाइक आई हैव वर्कड इन अ रिफाइनरी ARL 1998 में, उसमें डिजिटल आ चुके थे सिस्टम्स, बट दे वर वर्किंग ऑन न्यूमेटिक्स। व्हाई? बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी वाज सपोर्टिंग देम एंड सपोर्टिंग देयर बिजनेस, दे डिडंट चेंज इट। सो टेक्नोलॉजी को फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी जो चेंज करना है ना, दैट्स समथिंग विच इज नॉट एडवाइजेबल। फर्स्ट स्टार्ट आपका बिजनेस क्या है?
आप करना क्या चाहते हैं? उबर वाले खाने में आ गए, उबर आईटी कंपनी खाना बांट रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? Amazon एक बुक स्टोर होता था जब यूईटी में फाइनल ईयर में थे, एक बुक भी मैंने वहां से खरीदी थी। अब वो सब कुछ है, जहाज भी उससे खरीद लें, ठीक है? तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है? अलीबाबा ये क्या कर रहे हैं? फाइबर, ये क्या नाम है, मोबाइल फाइबर फोन्स और के, जी जी ये सॉरी ये फेसबुक और ये टेस्ला, फिर टेस्ला वाले का क्या नाम है यार, इलॉन मस्क। हाँ इलन मस्क, ठीक है? सैटेलाइट से इधर आ गया, उधर गाड़ियां बना रहा, उधर सैटेलाइट में बंदा भेज दे, बिकॉज इट्स द सेम थिंग अल्टीमेटली यू हैव अभी टू सी इट। ड्रैगन उसका वो ऊपर भी गया है ना, उसने हाँ गया, लॉन्च भी किया सक्सेसफुल आईएसएस के ऊपर। बंदा आईएसएस भी गया है, और वो टॉम क्रूज भी एक मूवी जो MI7 बना रहा है ना, उसमें वो आईएसएस पे जाता है। लेट्स सी, आई एम राइट। वेटिंग फॉर दैट। अभी तो टॉप गन 2 आ रही है सर उसकी। अच्छा, टॉप गन 2 भी आ रही है, वो उसी में जी जाता है, सर। लेकिन MI7 की जो है ना, उसमें स्पेस में शूटिंग हो रही है, और राइट वो राइट नासा राइट। के साथ हुआ। अच्छा, टॉम क्रूज से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज ही ऐसी है। अच्छा, सर। वो डेटा आर्किटेक्चर जनाब, एंड देन सो बिजनेस से आप फिर देखेंगे कि एप्लीकेशंस और डेटा आप कैसे मैनेज करेंगे। जब ये चीजें आप डिसाइड कर लेते हैं, फिर आप टेक्नोलॉजी पे आते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, हम लोग एंड बड़े बंदे, जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं की थी, मैं भी ये समझता था अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, यूज इट, विल सी व्हेन द बिजनेस कम। नो, सी द बिजनेस फर्स्ट, सी हाउ यू आर डूइंग एप्लीकेशन एंड डेटा, एंड देन गो फॉर टेक्नोलॉजी। देन यू सी ओके बिजनेस कैसे आप करंट से फ्यूचर में जाएंगे। ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं, बंदे को भी, कि अगर अताउल्ला मैडा ढोला मतलब रैप पे कह सकते हैं, तो क्या चीज चेंज नहीं हो सकती? टू पीस जो मैं काले और बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा, तो डेटा में आप आ गए, एंड देन टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। अब फिर ये फैब्रिक है कि मैक्रो से माइक्रो लेवल तक आपका सबको पता होना चाहिए। सो आपका लाइनमैन है, उसको पता होना चाहिए कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन किधर जाना जा रही है। लाइनमैन को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन अगर आईटी पे स्विच कर रही है, सारा कुछ विजुअलाइज हो रहा है, तो आपकी जॉब जा नहीं रही, आपकी जॉब चेंज हो रही है। पहले आप होते थे जनाब वाला लाइनमैन, अब आप हैं सीपी, कस्टमर प्रेमिसेस इंजीनियर, समथिंग लाइक दिस, ओके? और CPM, कस्टमर प्रेमिसेस मैनेजर। आपकी जॉब चेंज हो रही है, आपकी जॉब जा नहीं रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे वाले को भी पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क विद मेनी ऑर्गेनाइजेशन, दे फेल इन कम्युनिकेटिंग, कि टॉप क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, तो वो नीचे वाला ये समझता है पता नहीं ऊपर वाला कर क्या रहा है। वो जो कम्युनिकेशन चैनल्स है ना, वो आपके खुले होने चाहिए। फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा एक टोगाफ मॉडल है, जिसमें आप प्रीलिमिनरी देखते हैं, आर्किटेक्चर का विजन देखते हैं, बिजनेस को चेंज करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर टेक्नोलॉजी आती है, फिर अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, माइग्रेशन करते हैं, गवर्नेंस को करते हैं। सो दिस इज टोगाफ मॉडल, टोगाफ सर्टिफिकेशन एज, और रिक्वायरमेंट जो है ना हर जगह पे जा रही होती है। ये इंटरनेट है, और इंटरनेट कैसे है? द आंसर टू द क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली स्नैपशॉट, रियल स्नैपशॉट ऑफ optical fibers and simulation or something, of course. Optical fiber transmitting light and lambdas into the optical fibers which are spread around the world. So पूरी दुनिया में जितने ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं, ये उनका एक मैक्रो लेवल पिक्चर है, और उसमें लाइट कैसे जा रही है, और लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से दिस इज सिमुलेटेड स्टफ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। एक वीडियो थी, उसका टाइम पता नहीं है कि नहीं है, सो आई थिंक ये व्हाइट वाले नोट्स जो हैं वो हब्स हैं, और इसके अलावा सर चूंकि मैं डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ाता हूँ तो इट्स अ ह्यूज ग्राफ, और आई या थिंक फ्रॉम ग्राफ थ्योरी इस पे अप्लाई होती है। और ये इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि बिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो हैं, और हर वेब पेज जो दूसरे वेब पेज से है वो आई थिंक विद इन 19 क्लिक्स जो है वो कनेक्ट हो सकता है। दैट इज हाँ हाउ हो फार सकता है। वी आर। हाँ, जी हाँ, लेकिन ये फिजिकल लेयर पे ऑप्टिकल फाइबर जो है, उसमें जब लेजर ट्रेवल कर रही है डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट लैम्डास में, और पूरी दुनिया में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, ये उसकी रियल डायग्राम, राइट। डायग्राम। तो सो सर दिस इज द इसमें लाइट्स। एक बात बताइएगा कि हाँ, वो लेजर के लिए तो आई थिंक वो 3 विंडोज ऑफ ऑपरेशंस यूज होती हैं, वो तो इंफ्रारेड के ऊपर होती हैं आई थिंक। नहीं 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 नहीं, वो तीन होते हैं, वो नैनो से 1.35, 1.55 जी जी और जी जी 1.85। हाँ, ये लैम्डास पॉइंट हैं, एट। इसकी फ्रीक्वेंसी देखें तो इसकी बैंडविड्थ गीगाहर्ट्ज में बनती है। जी तो ये एग्जैक्टली तीन है, बिल्कुल। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन लैम्डास पे, ये नैनोमीटर है, 1.35, 1.55, 1.85, ये तीनों यूज होते हैं। लेकिन उस एक राइट लैम्डा के अंदर आपका पूरे के पूरा टीराहर्ट्ज तक की जो है ना बैंडविड्थ, और एग्जैक्टली। टीबीपीएस तक आ सकता है।
Ideal, practical, achievable theoretical capacity of optical fiber is 25 terahertz, huh? 25 50, terahertz, I think. 50 TDS, 50,000 gigabits per second as of now. और लिमिटेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की है जो स्विच नहीं कर सकता. Exactly. बिल्कुल ऐसे ही. So any questions, anything? Thank you very much. I finished in time. सर थैंक यू वेरी मच. मैं बस एक दो क्वेश्चंस आपसे करूंगा. सो अब 5G कितनी देर में एक्सपेक्टेड है, प्रोवाइडेड दैट कि हम 4G को भी प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं कर सके और वो डेटा रेट से वो सर्विसेज नहीं ले सके, तो 5G कितनी देर में एक्सपेक्टेड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT के हवाले से और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो 5G के हवाले से जो है वो क्या होने जा रहा है? 5G एक पाइप है, ठीक है. 5G एक वायरलेस पाइप है जो आपको 1G तक और मे बी 2 गीगा तक जो है ना, और मैक्सिमम 5 to 10 गीगाबिट पर सेकंड तक देता है. दुबई में आ चुका है, इतिसलात 5G ऑफर कर रहा है. मैं एक वो थोड़ा सा पहले मैंने ले लिया एक फ़ोन, तो अभी जो भी फ़ोन्स आ रहे हैं वो 5G आ रहे हैं, ठीक है. तो पाकिस्तान में भी आ जाएगा, ट्रायल कर रही हैं सारे के सारे कैरियर्स. अब वहाँ पे जो इशू है, जब मैं जोंग के एक ऑफिस में गया था, वहाँ पे उनसे बात की, जनाब क्वालिटी ऑफ सर्विस एरिक्सन का सोल्यूशन, जाहिर है एरिक्सन वाज अ वेंडर, पैसे मांगने थे उनसे. तो उसने कहा जी कि वी आर नॉट कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस, वी आर कंसर्न अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द कैपेसिटी. कहते हैं आरपू एक चीज होती है, एनुअल रेवेन्यू पर यूजर, वो हमारा $1 भी नहीं है. तो हमें $1 आरपू पे हम जो है $10 पर कस्टमर कैसे इन्वेस्ट करते हैं. सो दिस इज समथिंग द डिमांड. US, तो exactly. मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में 5G आएगा तो सही, बिकॉज कंपटीशन में उन्होंने रहना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस वो जो चीज है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. कॉर्पोरेट उसको कर सकता है, नंबर 1. नंबर 2, उसकी जो IoT, आपके ड्रोन, सारे के सारे डिवाइसेस, व्हीकुलर कार हैं, सारे के सारे 5G से कम्युनिकेट करेंगे. अब मेरी गाड़ी यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 है, 140 तक भी एक रोड पे जाते हैं, तो 140 पे मैं 4G यूज करता हूँ, चाहे मैं उस पर जूम कॉल कर रहा हूँ, जो भी चलती है, कोई इशू नहीं होता, सीमलेस है. तो वो 5G स्पीड ऑफ 300, 400, 500 जो लोअर एरियल व्हीकल्स हैं उसमें भी ये चलेगा. 5G ने आपको पाइप देना है कि वायरलेस डिवाइस ने आपकी अपनी हब से कैसे कनेक्ट होना है. ऊपर तो एप्लीकेशन है, तो वही एप्लीकेशन जो टीवी जो है, वो जो आप उधर देख रहे थे आप जहाज पे भी देख लेंगे. मतलब जहाज ऊपर है, उससे जाहिर है वो कैसे करेंगे, सैटेलाइट से ही आएगा, लेकिन वो लिमिट और उसका होता है, ठीक है ना. तो आई तो थिंक ये 5G की वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी के हवाले से सोचने की या सर्विसेज के हवाले से सोचने की या किसी भी चीज़ के हवाले से सोचने की जो एक कैपेसिटी है वो चेंज होने जा रही है, क्योंकि देखिए 1 मिली सेकेंड का डिले ये कहते हैं, और गीगाबिट्स ऑफ जो है वो डेटा रेट है, और एक्सा बाइट्स ऑफ जो है वो डेटा जनरेट हो रहा है. तो डेफिनेटली जब इतना ह्यूज ये सारा कुछ होगा तो एक्चुअली हमारे पास तो अभी वो सर्विसेज ही नहीं है ना जो हम जिसके ऊपर ये पाइप को जो है वो कर सके. जैसे लैन है सर, वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तो देती है जो कैटेगरी 5E केबल है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो उसको आप 1% भी नहीं यूज कर रहे होते उसकी कैपेसिटी का. तो OTT ये समथिंग समथिंग बिजनेस लाइक मॉडल, आज यू थिंक ऑफ अ बिजनेस एंड देन यू ट्राई टू एग्जैक्टली. कैपिटलाइज व्हाट यू वांट टू डू. वही मैंने बात की कि टेक्नोलॉजी 5G तो आ गई, और मैंने जी 5G मोबाइल फोन ले लिया है, ठीक है यार, इसका वो जो है ना, इस पे जरा फेस आईडी इनेबल कर दो. हमारे हैं कुछ अंकल्स, मतलब दे डोंट नो, दे गॉट यू नो ये क्या आईफोन प्रो मैक्स जो 12 आ गया अब, ठीक है, तो दे गॉट इट, बट वी नीड टू योर डिवाइसेस. उसमें जनाब, उसमें आपकी मिक्स रियलिटी की एप्लीकेशंस है, जी. सही है. VR आपके AR एग्जैक्टली. AR है, मिक्स रियलिटी है, तो उसमें आपकी एप्लीकेशंस है. सो थिंक ऑफ योर बिजनेस एंड देन सी व्हाट टेक्नोलॉजी यू नीड. ये पेन में डाल रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, ओके, what technology do you need and then you do this. तो yes, there's huge potential of businesses, और इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप और इन चीज़ों की तरफ हम लोग भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान को भी आना चाहिए. मेरी एक मीटिंग है अभी, पीपल विल बी सर मीटिंग. थैंक यू वेरी मच. जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दें NIAIS के हवाले से, ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. सो ये इन व्हाट डायरेक्शन वी शुड मूव, और हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और वर्चुअल लैब्स हम बच्चों को प्रोवाइड करें, और टॉप नॉच उनको जो है वो ट्रेनर्स के जरिए से सारी जो है इनके अंदर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. तो आप भी अगर अपना फीडबैक दे देंगे. हैंड्स ऑन, मैं ऐसे कहूँगा हैंड्स ऑन. और एक बंदे एग्जैक्टली. ने CCNA किया तो मसला आ गया, तो वो कहता है कि नेटवर्क तो आ रहा है, नेबरहुड नहीं आ रहा. उसको तो विंडो 98 में नेटवर्क नेबरहुड का आइकन होता था. हैंड्स ऑन, एग्जैक्ट. हैंड्स ऑन, बस फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, हैंड्स ऑन. जो करेंगे,
चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, Sir, इंशाल्लाह thank गपशप you very much for enlightening us on such broad topics. और डॉक्टर आसिफ नवाज, मैं बताता चाहूँ, मैं टीचर भी हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन बड़े मज़े से इनसे पढ़ी, इंस्पिरेशंस भी हैं। तो ये जो डिस्कशन हो रही थी, मैं तो खैर 3-4 घंटे और भी बात कर सकता हूँ सर से। तो सर मेरी थैंक यू वेरी मीटिंग मच, है। थैंक यू ओके, वेरी थैंक यू, मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और आपने टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।